Yes, good afternoon and Jai Generate to everybody. Let's start the program with the Navkar Mantra and then we'll follow the order. So Navkar Mantra, please. Thank you. On behalf of Jito Professional Wing and on behalf of Jito Ratlam Chapter, on the behalf of Jito Apex and Apex Secretary श्री कमलेश जी सजाटिया सर, जिनकी प्रेरणा से आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है. This is going to be a great program about a very humble and great human and industrialist being श्री अभय जी. तो मैं शुरुआत में सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रवि जी जैन, who is the youngest director of Jito Apex and the Jito professional team and one of the most dynamic leaders, the one who always delivers, has a passion for excellence, and he's done a tremendous work with the Jito professional wing to take it leaps and bounds across the nation. And he's the MD of JRK Group, which is a financial services firm. रवि जी, आपका वेलकम और आप हमारे अभय जी का वेलकम कीजिए. थैंक यू. Thank you, Sanjay ji, for lovely words. Jai Jirendra, everyone. To start with, I would like to express my compassion and hope in this pandemic time. Would like to flow with the bliss we shall overcome. On behalf of whole JPF team, it gives me immense pleasure to welcome dynamic personality, industrialist, social educationist, Jito Vice President, and today's speaker, our own Sri Abhay ji Sri Srimal. I also welcome all office bearers of Jito Apex, Jito Jaipur chapter, Jito Professional Forum, and all participants to this exclusive webinar on Dream, Dare, Deliver. Well, someone has rightly said, dream while others are sleeping, dare while others are wishing, do while others are talking, and deliver while others are quitting. In today's webinar, we will get a chance to know the importance of 3 Ds, that is dream, dare, and deliver in our life. The session is certainly going to be very interesting and innovative. So not delaying anymore, I would request Sanjay ji to proceed with the webinar. Thank you. रवि जी, extremely well said. Dream, dare, and deliver. धन्यवाद. इसके साथ में मैं मुकेश जी जैन. Mukesh Ji Jain is a co-host of the event, chairman Ratlam chapter and a successful entrepreneur. इनका manufacturing का काम है और Ratlam chapter also is a base where the Lupin and IPCA laboratory started their pharmaceutical business, जहाँ से अभय जी भी बोलने वाले फार्मा के बारे में. मुकेश जी, आपके 2 शब्द वेलकम करने के लिए अभय जी के लिए. प्रथम सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम. आज बहुत अच्छा दिन है जो मदर्स डे है, तो मैं जितने भी जीतो में हमारी महिला शक्ति हूँ सबको भी प्रणाम करता हूँ. और रतलाम चैप्टर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आदरणीय अभय जी श्रीमाल साहब को सुनेंगे. बहुत ही आपसे मेरी सुबह चर्चा हुई. बहुत हम्बल, बहुत सिंपल आदमी हमें आज संबोधन करने वाले हैं. हम उनसे सुनेंगे उनके लाइफ की जर्नी, कैसे वो जीरो से हीरो बने, और हम उसमें से ग्रहण करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में ये सब चीजें लगाकर हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाएं. आइए, इस प्लेटफॉर्म पे जीतो के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं. जीतो प्रोफेशनल ग्रुप का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पुनः संजय जी को ये वापस देता हूं कि आगे का प्रोग्राम वो कंडक्ट करें. पुनः अभय जी श्रीमाल साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत. और हमारे, मैं भूल रहा हूँ, कमलेश भाई का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, जीतो अपेक्स सेक्रेटरी, और इनकी प्रेरणा से आज ये वेबिनार हो रहा है. पुनः सभी का धन्यवाद. धन्यवाद मुकेश जी. मैं आकाश जी को इंट्रोड्यूस रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा इंट्रोडक्शन आकाश जी करेंगे. आई एम द मॉडरेटर फॉर द इवेंट. जय जिनेंद्र, प्रणाम सभी को. It's an honor to be here with all of you today with such great personalities. And in this webinar, I would like to introduce our moderator for today,
Shri Sanjay J. Lodha ji. Sanjay uncle, he's like a global entrepreneur, investor, and also a mentor to many startups. He holds a degree in MS and chemical engineering from US and has done his management course from MIT. He has worked with a lot of petroleum, oil and gas companies such as Shell in leadership roles, has received a lot of prestigious awards from these companies as well. And more than that, he's also the founding chairman of the Jito International Wing. And we are honored to have you, sir. And we look forward to the session. Over to you, Sanjay uncle. Thank you, Akash, for those kind words. I don't deserve, but thanks very much. With that, I think I'm glad to see now we're touching the crowd of 500 people on Zoom and 1,000 more on the Facebook. So on behalf of, again, Jito Apex, Jito Professional Wing, Jito Ratlam chapter, and the entire, I welcome the entire audience who has not only come from India, from across the world. And now it's my honor to welcome and introduce Abhayji. It's going to be two parts introduction. First part is going to be a small one video on Abhayji. It's a 1 minute video that we will show. And then I will have a few words on Abhayji before we have his opening remarks. Akashji, please have the video. Thank you. Thank you, Akash. Now let me formally introduce Abhayji. So my introductions are always informal, and let me start with saying some people take a easy road in life, and some people take a difficult road in life. And difficult road most times lead to beautiful destinations. Abhayji is one such person who chose to take the difficult road, but the difficult road of sustainable innovation to scale up to grand commercial success, not once, not twice, but many, many times through his sheer imagination, hard work, and perfect execution, and belief in himself. Abhayji was born and grew up in Chennai, studied in Hindi medium, and is a chemical engineer like me by background. Currently serving as the chairman of LifeCell International, DNA, another company. Is the MD of Venkat Narayana, Active Ingredients, and number of other companies. His sales have crossed more than $1 billion. We started with the Shashun Chemicals, so on minimum 8,000 crores, on higher unlimited number. Very successful on that front. His achievements includes many accolades and awards, including Young Entrepreneur of the Year Award, Champions of Humanity, Bharat Gaurav, Rajasthan Shri, and many more. As you saw Ushaji on the call, also on the video, he's married to a wonderful lady, Ushaji, and happy Mother's Day, Ushaji, with 3 children and 5 grandchildren. Now, we all know, I think Abhaya, this name is incredible name. He's fortunate to have his name from his parents. This name means one who is not afraid to take the righteous and the difficult path to succeed, but also one who will always provide the Abhaydan to anybody who comes to him for help. So this name is incredible. I think we should thank Abhayji's parents for that. And today, on this dream, dare, and deliver, we're going to learn about how he dreamed, how he dared, and he delivered successful companies like Stride Sassoon, LifeCell, Fremflow India Private Limited, Visionary RCM Infotech, NanoLife, DNA, and many more companies, but through sustainable innovation, through scale up, and through a flawless execution. And we're going to learn that today. So our learning today, and my request to all these people, now we've crossed 500 people, is please, you are spending an hour on this event, at least take one thing home that will help you succeed in your life. Otherwise, the time we spend, we must take something back home.
And so today we're going to learn Dream, Dare, and Deliver, sustainable innovation, how to raise equity and find right partners for that equity, outlook for the pharma industry, and last but not least is how to exit the company at the right time, which you build successfully with a lot of money. With that, I'm going to request, and again, Abhayji, welcome on JPF and Jito Ratlam Zoom channel. And with this, I'm going to request you with honor to have your opening comments. Thank you, Abhayji. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले सबको मेरा जय जिनेंद्र, और मैं वाइस प्रेसिडेंट जीतो अपेक्स आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जीतो रतलाम चैप्टर चेयरमैन मुकेश जी, जयंत जी, चीफ सेक्रेटरी, जोनल चेयरमैन वेद प्रकाश जी, और जीतो प्रोफेशनल फोरम के चेयरमैन श्री अशोक जी कोठारी, वाइस चेयरमैन श्री अजय जी बोरा, रवि जी, बाकी सब पदाधिकारी, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे बहुत से मित्र पूरे यानी भारत से और बाकी जगह से भी बहुत से आए हैं, विश्वास जी और मारू जी, और बहुत से एक दो नाम लूंगा तो कम नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ, पर सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये मुझे सुनहरा मौका दिया है। ये कोविड का समय है, पहले आज बहुत अच्छा दिन है, मदर्स डे है, तो मेरे पीछे भी देखिए मेरी मदर और फादर का ही फोटो है, क्योंकि आज जो मैंने साशुन कंपनी शुरू की थी वो कंपनी का नाम भी मैंने मदर और फादर के नाम पे ही रखा था, साशुन शंकरलाल जैन और सुंदरबाई SUN, तो दोनों को मिला के ही मैंने साशुन 1976 में शुरू की थी। तो आज मुझे उनको अपनी याददाश्त करने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यात्रा जो शुरू हुई थी, और उसके पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो कोविड का जो समय है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं, सब ऐसे 50 दिन के इस लॉकडाउन, या किसी का 60 दिन हो गया, किसी का 50 हो गया है, तो इस लॉकडाउन के माहौल में सबके मन में यही चिंता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, और सबके मन में एक विश्वास जो कम हो रहा है, उसके लिए मुझे 4 पंक्तियां बोलनी थी कि मन का विश्वास, ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, तो अपना विश्वास बढ़ाइए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने आप कोशिश करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, यानी भारत को ये एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ये मौका शायद 4-5 साल बाद आता, ये कोविड के कारण ये जल्दी आने वाला है, इसलिए कोई उदासीन होने की कोई बात नहीं है। ये तो एक चुनौती बनकर आया है, चुनौती का हम सामना करेंगे। मैंने जिंदगी में हर चुनौती को स्वीकार किया है, और जिंदगी में एक प्रिंसिपल बनाया है कि हर हैंडीकैप को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूंगा। जैसे बहुत से समय जितने भी मैंने शुरू किए थे काम, उसमें बहुत सी तकलीफें आई, सामना करना पड़ा, फिर हर तकलीफ को समझते समझते उनको सुलझाकर आज इस स्थिति पर पहुंचा हूं। थोड़ा बैकग्राउंड मेरे फैमिली का भी दे देता हूं, क्योंकि हम लोग राजस्थान में बुटाटी से हैं, पर दादाजी वहां से 1890 में निकल के महाराष्ट्र आ गए थे, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वहीं खेती करते थे, और 1932 में जब पिताजी की 15 साल की उम्र थी और खेती में ज्यादा पैसा नहीं बनता था, तो चेन्नई आ गए थे काम करने के लिए, और चेन्नई में उन्होंने 20 रुपये महीने की नौकरी में अपना काम शुरू किया था, और धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने ज्वेलरी का काम किया, रिटेल का काम किया, किराना की दुकान से शुरू किया था, और उनके जब 3 बच्चे पैदा हुए तो वो अनपढ़ थे, पर उनके मन में इन्होंने ठान ली थी कि तीनों बच्चों को मैं अलग अलग डिग्रियां दिलाऊंगा। एक बच्चे को डॉक्टर बनाने की सोच ली, मैं दूसरा नंबर का था तो मेरा इंजीनियरिंग का काम आया, तो मुझे इंजीनियर बनाया, और तीसरे मेरे छोटे भाई को
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए। तो ये उनकी सोच जो थी वो एक अलग ही थी। इसके कारण मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना पड़ा। पर केमिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन होने से मुझे एक दृढ़ निश्चय उसी समय बना लिया था जब मैं शायद 15-16 साल का था। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं एम्प्लॉई नहीं बनूंगा, एम्प्लॉयर बनूंगा। तो एम्प्लॉयर बनने के हिसाब से 17 साल की उम्र में जब कॉलेज में ज्वाइन हो गया था, तो मैं हर साल जब छुट्टियां होती है समर हॉलीडेज, तो समर हॉलीडेज में यही करता था कि 15 दिन मैं बैकपैक लेके पूरा भारत घूमता था। उसमें भारत यात्रा की टिकट होती थी, शायद अभी भी है, 100 रुपए की टिकट होती थी। उसमें 30 दिन आप पूरा भारत घूम सकते हो, उसमें रिजर्वेशन नहीं होता था। तो मैंने सब ट्रेनों में घूमा। तो मुझे क्या हुआ कि इसमें पीपल स्किल समझ में आया कि कैसे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपको यात्रा में, और कैसी कैसी भाषाएं सीखनी पड़ती है। तो इन सब के कारण मेरा धैर्य और बढ़ गया। फिर जब मैं हर साल इंटर्नशिप करता था, मैंने डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री में किया, फूड इंडस्ट्री में किया, पेपर इंडस्ट्री में किया, जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज थी सब में अपना अपना इंटर्नशिप का काम किया। और जब एजुकेशन 1975 में खत्म हुई तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं एक फैक्ट्री डालूं। पिताजी के पास अपनी जिज्ञासा लेके गया। तो मारवाड़ी घरों में जो पहले होता है कि पहले शादी कर लो। तो 1975 में अप्रैल में मैंने एग्जाम दी और मेरी शादी उषा के साथ 1975 में हो गई। ये सौभाग्य ही है, क्योंकि एक जिंदगी बसाने का एक काम शुरू हो गया। पर एक साल बाद मुझे रहा नहीं गया, फिर पिताजी के पास गया कि मुझे एक फैक्ट्री करनी है। उस समय उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि चलो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और साशून को स्टार्ट करने के लिए पूरी पूंजी 5 लाख की थी। तो 5 लाख भी देने के लिए पिताजी तैयार नहीं थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पिताजी से 3 लाख और बाकी मित्रों से, पिताजी के मित्रों से 2 लाख रख के हमने शुरू किया था साशून 1976 में। उसके पहले एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इवन कॉलेज डेज में मेरी जिज्ञासा इतनी थी कि मैं नया काम सीखूं, नया कुछ करूं, नई कोई स्किल सीखूं। तो जब भी मैं स्कूल में या कॉलेज में था तो मेरा क्रम था यही था कि मैं 4 बजे उठ जाता था, 4:30 बजे तक एक्सरसाइज करके फिर अपना काम शुरू कर देता था। मैंने रोइंग सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखा और फ्लाइंग भी सीखा। आई एम अ सर्टिफाइड पायलट, but now I have to go for renewal. Of course, it is not renewed now. I have to go for renewal, but I am a certified pilot. And I was so hell-bent upon learning new skills that I used to have my own music band. And I used to sing songs. I used to go and we used to play in some of the marriage functions, earn money. That is, every money earned was so important for us that we knew the value of earning every single naya paisa. And today I'm blessed with 1 daughter, 2 sons. All of them are in their business, their own business they are running. And I have 4 grandsons and 1 granddaughter. तो आज भरा पूरा परिवार है। इस समय जब कोविड के समय में परिवार के साथ रहते हैं तो पूरा परिवार यहाँ पे आ गया था। Luckily everybody was here. So I'm so lucky that I'm able to spend time with my grandchildren and learn about their wants, what they want. तो इस समय यही मैं कहूंगा कि इस डिफिकल्ट समय में इंटेलिजेंट आदमी की सक्सेस नहीं होती या कोई बलवान आदमी की सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस उसी की होती है जो समय के बदलाव के अनुसार अपने आप में बदलाव ले आ जाता है। तो अपने आप में बदलाव लाके जो आगे का काम सोचता है उसी की सक्सेस मिलती है। और यहाँ पे मैं अपना परिचय यहाँ पे कोई विश्राम देता हूँ और आगे कोई संजय भाई आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आई विल बी टू हैप्पी टू आंसर। Yes, Abhay ji, thanks for the wonderful introduction. Humble, genuine person, 24 karat gold person, I would say. एक phrase है English में कहते हैं winners don't quit and quitters don't win. And absolutely, Abhay ji is a true winner, which you heard from his opening remarks.
तो अभी मैं इसके बाद में मेरे पास क्वेश्चंस आए काफी लोगों से. So I'll be asking those questions in an interview format with Abhay ji, maybe 6-7 questions. और उसके बाद में मैं जो चैट और अदर जगह से क्वेश्चंस आए लेने वाला हूँ. Of course, the questions will be focused on sustainable innovation, commercial scale up, how to raise equity, how to find right partners, what is the pharma industry outlook. So make sure your questions are more focused on what will drive your future. So the first question, Abhayji, is we learned your humble beginning, basically a boy with no financial background, with the education in Hindi medium, and rose to become a successful industrialist, a big leap in success. What are the key factors helped you get there in terms of being so successful? What are the key factors? The key factors was hard work and ensuring that every handicap is converted to opportunity. So not that I did not start with any, because मेरा फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फार्मा में डायरेक्टली आर त्यागराजन जी पिताजी के दोस्त थे. उन्होंने बताया था कि आप फार्मा इंडस्ट्री में आओ, सनराइज इंडस्ट्री है. तो उस सनराइज इंडस्ट्री में पहली बार जब 4 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट था, इंटर्नशिप. पर जब मैं अपना काम शुरू किया तो आई यूज्ड टू सी दैट आई वर्क हार्ड, I plan well, I take people into consideration. I always used to employ more intelligent people than me. Wow. I wanted to ensure that I surround myself with more intelligent people, and that is one of the reasons for my most of the successes I have had in various fields. Wonderfully said. I think that point is very well taken. Always have the people around you who are smarter and more intelligent and are working than you, because then that brings you the best of the ambience and the team to work with. Thank you for that answer. Next question is a little bit interesting. Chennai, I think years ago, maybe 20 years ago, it was a sleepy town. Certainly no Hollywood movies and certainly no Bollywood movies either. And one of the companies you started with, Frameflow India Private Limited, that was into visual effects and animation movies that went to make very legendary movies like Spider-Man 3, I'm a Legend, Hancock. I mean, somebody from Chennai, that too with the movies in the Hollywood on the visual effects. And it was more of a handicap. I mean, you had no background, nothing. So how did you end up finding this, and how did you convert a handicap, I will call it obstacle, because Chennai is not known for any of this, into a big opportunity, and then you sold this company to Sony Pictures America? 2000, I had, my daughter had started animation company, and she was doing digitization for all the Indian industries, converting their digital catalogs into animation and giving it to them. And we had built one of the top team along with her. And I was very keen that, any Jain community was not very prominent in the IT industry. IT industry was flooded with murtis and others in the industry, but there was not a Jain who was really pushing the IT industry. So I said, I must look into where IT industry, which IT industry is the greenfield industry. And that time animation was a big industry. So I caught hold of the right people. In 2004, I took my daughter's industry because 2004, because of some circumstances, I had to leave Sarshon because I wanted to take a sabbatical, and I became jobless. जब काम नहीं था तो बेटा डॉटर के पास जाके काम मांगा, तो daughter was too happy to leave the company to me, and she went to do her MBA. तो जब मेरे पास काम आया था तो मैंने एक ही सोच लिया था कि इसको हॉलीवुड ले जाना है. बंद कर पाए. So I had the right connection in Hollywood. So I met Barry Osborne through one of my good friends. Barry Osborne is the producer of Lord of the Rings. And we met and he introduced, during the first introduction itself, he said, okay, I'll give you 36 shots of the Lord of the Rings. And we did that 36 shots of the Lord of the Rings, and he liked it so much, then he introduced us to various other companies. And the first big movie which we did animation here back in Chennai under the name Frameflow India Private Limited was a movie called Click. I don't know, it was Adam Sandler's movie, which you can, life can be fast forwarded also. That became a super hit. And with that,
we got the Spider-Man 3 shots to be done here. There were 3 competitions, there were various competitions. We had a lot of handicaps in the sense we didn't have the right people. But then we brought 3 people, Oscar Award winners from America, brought them here, made them stay here for 6 months, got all the shots done, and the Spider-Man 3 was a super success for us because more than 90% of the visual effects was done here in our studio in Chennai. And that time they came back and said that, you know, in 2007, before the movie was released, they said that we would like to buy it over. And we said we are not prepared for it. But they said, no, we will not release the movie unless you sell the company. And then we said we had George Lucas because we were working on Star Wars at that time. जब Star Wars का काम चल रहा था तो George Lucas भी, they had shown some interest in the company. And when they heard about George Lucas, they doubled the price and they said that we want to buy you at any cost. And that's how we sold it at a phenomenal price and sold 50.1% in 2007. And the remaining was sold in 2013. And this 6 years with Sony Pictures, I was on the board of Sony Pictures. And we did phenomenal movies like I Am Legend, Ghost Rider, 2012. Name the big India Hollywood movie, it was all done here. And I am glad that it was a phenomenal experience of learning about animation and visual effects with us. So the key was that we employed the right people and more talented than any one of us here. Yeah, and you also dare to go into something that you had never done before. So that dare part of that dream, it really works, and that's simply incredible. So I think when you have a dream and you dare, there is no limit and there are no boundaries to what you can achieve. Certainly, you need a lot of hard work and you need the right people around you. A very good example of it is simply impressing in those times to have company into visual effects and then sell it to something like Sony. Simply amazing. My next question is, of course, another technology. So we talked about the digital stuff. We talked about animation. The next question is, it's more focused on the scale up. You had another company called LifeCell, which is in the field of stem cells as a one-stop solution for stem cells from the time baby is born, storing her umbilical cord, to having a bank through which you can supply the stem cells for all the medicinal purposes. Simply amazing that nobody had even thought of the genetics part in the stem cells. Again, आप इस मुकाम में आ गए, आपने कंपनी बनाई जो कोई सोच भी नहीं सकता था. फिर आप ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर आए as ambassador. So question is, how did you come up with this idea and you got the company where it is now? How did you scale up from concept to reality, because nobody had thought about it? And what are the key learnings for the audience on the scale up format for this particular LifeCell company? 2004, when I had taken a sabbatical from Sassoon, I was searching for new avenues and new concepts. And that was the time one of my friends in America, because I travel extensively. I travel at least between 1994 and 2004, I was traveling every month to America. And that was the time I came to know about a technology called stem cell preservation, which was started in Tampa, Florida. So through one of my friends' contact, I went and saw the facility. This was in April 2004. Came back, we decided that we should start this because this concept was not available in India. It was something of a new concept where the stem cells, I knew that as a pharma man, I know the usefulness of the stem cells and how it can help in helping so many difficult areas like blood cancers and all, how it can be helped. So we started doing the cord blood banking. We brought the concept, and I had a challenge that, you know, my child was supposed to be born in November that time, and I had to complete the project. So I was running against time, training people, transfer of technology, getting the license. Everything was a challenge, and because of my experience in the pharma industry for the last few years, I was able to overcome all the difficulties, and we set up the center in next 5 months. And we commissioned the project on November 12th, and November 12th was the grandchild born, and he became our first customer in LifeCell. So LifeCell was started with that intention, but the intention was to bring the goodness of LifeCell to the stem cell preservation to the entire country.
Now, when we started marketing, it was a hell of a task because people were not able to understand that they have to give blood and they have to give money for storage also. So this was a funny situation in India. And when we started explaining, even the gynecologists and doctors, we had a huge tough time. But we had prepared ourselves well, that we knew that we were going to hit the bottom line many times. So we were actually diluting our company and giving away shares to the private equity investors. We had a lot of private equity, high net worth individuals who really came into the LifeCell, supported the concept because it was an innovation, it was a breakthrough concept. And then to prove that this is really works, we set up a hospital. And this many people do not know that we had set up India's best hemato-oncology center, that is treating blood cancer center in Ramchandra Medical College. We had our own center which was inaugurated by the then president, Dr. Abdul Kalam ji. He came here, he inaugurated that. And that became a benchmark for many hemato-oncology centers in the future. Today, it has become a very common place where people use stem cell, preserved stem cells, and we have started a community banking. आज जो कम्युनिटी बैंकिंग के अनुसार जो 1 लाख नहीं 1.5 लाख कार्ड ब्लड प्रिजर्व टाइप्ड हैं, HLA टाइप्ड हैं, तो क्या है किसी को भी मैचिंग मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसप्लांट भी होने शुरू हो गए. तो इस ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर का पूरा क्योर भी होता है. Not only blood cancer, there are a lot of other ailments which can be cured. We have hundreds of cases where they have taken it for treating a sibling's cancer like thalassemia, leukemia, and people have been finding it very, very useful. Now, after that, we went ahead, we said we have to be fast in innovation. So we went ahead doing diagnostics, genomics, biologics. Now, every part of the cord blood, पहले हम लोग खाली खून ही कलेक्ट करते थे, अभी नाड़ भी लेते हैं, उसके साथ जो amniotic fluid आता है वो भी कलेक्ट करते हैं. Amniotic fluid का patch, it's a fantastic material for wound healing, and that also we have the license to market it. It's a small patch is being sold for 1,000 rupees a piece, and it treats wound, any diabetic wound or any wound very well. So the kind of science, we always run ahead in the science and ensure that our rear view mirror is always empty. When I say rear view mirror is empty, I mean we take the lead in so much that competition is never seen on the rear view mirror. Yeah, I think it's a very good sentence. I think rear view mirror, there is nobody, means competition is so far behind. And I think you have a majority market share now with the LifeCell. What is the market cap, if I may ask you, of this particular company? Today we have market share of more than 70%, but you will soon be hearing that we are, a lot of companies are getting close, and we'll be going up to 85 to 90% of the market share. And today I'm glad to tell you that LifeCell has become the world's largest stem cell bank. Simply amazing. So, जो मेरी ऑडियंस, Zoom ऑडियंस और Facebook ऑडियंस जो सुन रही है मुझे, मैं थोड़ा भी अभय जी को हिंदी में बोलने को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश चल रही है और हमारे काफी भाई और बहनों जो मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, चेन्नई से है. बिल्कुल, मैं हिंदी में बहुत फ्लुएंट हूँ. इंग्लिश में मुझे कभी पहले डर लगता था 1976 में, बात नहीं कर पाता था. पर आप ये सोच लीजिए कि इनका अगर डिजिटल मूवी का जो विजुअल मूवी थी या स्टेम सेल थी, एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें डेयरिंग लगती है बिकॉज यू आर गुड चांसेस यू आर गोइंग टू फेल, बट इफ यू हैव अ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क तो आप इसमें सक्सीड हो सकते हैं ऐसे एरिया में जो किसी ने कभी किया नहीं है. तो इट वाज अ फैंटास्टिक आंसर. उसके साथ में अभी जी नेक्स्ट मकाम पे जाऊंगा. अगला जो मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए. अमेरिका का एक स्पोर्ट्समैन था कार्ल लुइस, वेरी फेमस, ही वन 10 गोल्ड मेडल्स, एंड ही सेड I may be walking slowly, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, but I don't walk backwards. The only time I walk backwards is when I go for a gold medal in Olympics. ये लॉन्ग जंप करता था ये बंदा. तो इसका कहना था भाई बैकवर्ड तो कभी लाइफ में जाता ही नहीं हूँ. आपकी एक जो कंपनी है नैनो लाइफ, which is a nano technology based company, gold silver technology based. I know you dealt with it for quite some time. You had a lot of struggle, a lot of challenges. At one time you thought about getting out of it. And then came the COVID-19. So COVID-19 को सब तो डर रहा है,
मगर आप तो इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी गोज वेरी वेल विद द कोविड-19. सो वेयर इज द टेक्नोलॉजी नाउ एंड हाउ डू यू सी इट ग्रोइंग एंड हाउ डज इट हेल्प विद द कोविड-19? I have been, what happened, I'll just give you a small background about my coming back into Sashun. In 2010, when I was busy developing a lot of other factories, I had invested and I started 14 new अभी जी थोड़ा हिंदी में बोलिए, थोड़ा हिंदी प्लीज. तो 14 नई कंपनियां शायद शुरू कर दी थी, एजुकेशन फील्ड में भी चला गया था और 2010 में मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैं वापस साशुन में आ जाऊं. और जब वापस साशुन में आ गया था तो पहला मेरा काम था कि वो मुझे ये नैनो टेक्नोलॉजी के काम में उनको शुरू करना था. तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो फील्ड के जो ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी के जो आविष्कारक थे उनके साथ हमारा टाई अप हुआ और 10 साल से 2010 से मैं इस नैनो टेक्नोलॉजी के काम में लगा हुआ था. I knew that this technology has very powerful reach क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग रेडियो एक्टिवेटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाते थे. इस रेडियो एक्टिवेटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को जब हम किसी कैंसर यानी कोई सॉलिड ट्यूमर में भी देते थे तो ट्यूमर यूज्ड टू श्रिंक इन 21 days. It was amazing. It was an amazing concept. The entire field work was done on the animals and dogs and pigs. But then we learned that the radioactivity जो होती है वो शरीर में रह जाती. तो इसका क्या उपाय किया जाए? तो रेडियो एक्टिविटी को निकालने के बजाय, रेडियो एक्टिविटी करने के बजाय और कोई तरीका है क्या? जब इसका आविष्कार हम करते इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने जड़ी बूटियों के माध्यम से हमने गोल्ड और सिल्वर का नैनो पार्टिकल्स बनाना शुरू किया जो ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी था, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल या अल्कोहल या सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होता था. पर बना तो दिया, अब इसका उपयोग भी होना चाहिए. तो इसके उपयोग के लिए हम लास्ट 3 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा साइंटिफिक एविडेंस बनाया जाए, हर चीज का एफिकेसी टेस्ट हो जाए, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट हो जाए. क्योंकि हम लोग फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो हम जानते हैं कि इसको किसी को नए ड्रग को लाना है मार्केट में तो उसका कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितने तरीके से उसको टेस्ट करना पड़ता है. पूरा एनिमल टेस्ट होने के बाद जब ह्यूमन टेस्ट में हुआ और जब हमारा ब्रेस्ट कैंसर में हमारे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का टेस्ट हुआ था तो वी गॉट अ फिनोमिनल रिजल्ट. सो विद इन 21 days we could see at 40% reduction in the breast cancer. And we wanted to actually market gold nanoparticles in a big way, but in between ये कोविड आने के कारण silver nanoparticles started picking up because silver nanoparticles is a very powerful Ayurveda disinfectant. It is the world's first Ayurvedic disinfectant. और इसका इतना अभी चल गया है और सर्टिफिकेट इंडियन काउंसिल मेडिकल काउंसिल ने दिया है कि दिस इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट. तो इसमें कोई अल्कोहल और केमिकल नहीं होता है. तो आज इसका पूरे जब मैं सोच रहा था, आपने सही बताया था कि मैं सोच रहा था कि इसको बंद कर दूं, पर इसके इतना चल गया है कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में 27 देशों में उसका एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया. और लकीली वी हैड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड वी आर टुडे राइडिंग द वेव व्हेन कोरोना में सबको यानी तकलीफों पर बात कर रहे हैं. हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड. बट इसके आगे हमारा आविष्कार इस पे यहाँ रुकता नहीं है. हम इसके आगे प्लैटिनम नैनो पार्टिकल्स, वी आर वर्किंग ऑन आयरन नैनो पार्टिकल्स. आज विश्व की सबसे बड़ी बीमारी आप कैंसर है या दूसरे समझते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बीमारी है अनीमिया की. क्योंकि जो आयरन जो होता है, अपने वेजिटेरियंस जो अपने खाना खाते हैं उसमें आयरन अब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है और बाकी 50% ऑफ विमेन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया एंड हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम्स. ये जो आयरन नैनो पार्टिकल्स है, हमारा विश्वास है और हमारा जो रिजल्ट इन विट्रो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है अमेरिका में, इसका पूरा आविष्कार हमने पूरा अमेरिका की रिसर्च लैब में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी में, जहां पे डॉक्टर कटी कटेश है, इनका जो इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी. इस आविष्कार को हम लोग जल्दी से जल्द जून जुलाई में हम लोग आयरन नैनो पार्टिकल्स भी लॉन्च करने वाले हैं. तो इस कंपनी को जो मेरा खुद का विश्वास मेरा कम हो गया था, आज इसके
I'm riding the wave. I'm very happy that I did not go behind and close it, because that is not what I want. This is a lesson for every entrepreneur, that at the end of the corner, you will see the light. Don't give up. Don't give up till you are able to reach that point of influx where you are able to see and you will grow well. So this is a great lesson for the entrepreneurs, because every struggle teaches you a new lesson. Vasi, I just want to touch on a different subject. In 2010, when I came back into Sassoon, and 2010 to 2014, we had rebuilt the whole company. And that was a great experience for me, because from a 60 crore market cap, we had built it again back to 400 crores, and then we merged the company with Strides Sassoon, and the market cap went to more than 12,000 crores. अभय जी, सिंपली अमेजिंग। तो अगर ऑडियंस में जो लोग है, जैन्स है, नॉन जैन्स है, आप समझ लीजिए कोई चेन्नई का लड़का जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, विजुअल इफेक्ट्स भी करता है और कंपनी सोनी पिक्चर्स को बेचता है, लाइफ सेल लार्जेस्ट कंपनी इन द स्टेम सेल बनाता है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी जो हमको समझते नहीं है, दैट टू गोल्ड सिल्वर पार्टिकल्स, ऑल डाइवर्स बैकग्राउंड्स, टाइम एंड टाइम अगेन, बेस्ड ऑन इनोवेशन, बेस्ड ऑन स्केल अप, बेस्ड ऑन नेवर गिविंग अप। इसको बोलते हम, अगर जिसका करेज सक्सेस के लिए ज्यादा होता है rather than the fear of failure, they are always successful। और जो हम बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ 5 लीटर ज्यादा है, तो अभय जी उस काम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गिने जाते हैं ऑन द बिजनेस फ्रंट एंड मेनी अदर फ्रंट्स। अभय जी, अभी मैं थोड़े आपको 2-3 थोड़े रैपिड क्वेश्चन करूंगा, और उसके बाद में मेरे साथ पास बहुत सारे क्वेश्चन आए बाकी लोगों से, वो मैं चालू करूंगा। तो एक क्वेश्चन तो मैं करूंगा कि भाई, how do you handle the ups and downs in life? Life is not rosy, life is not a golden path, not unlike Hindi Bollywood movies। और मैंने सुना है क्या, how do you make the comeback and revival? For example, मैंने सुना कि आपकी जो पहली Strides Sassoon Pharma कंपनी थी, शायद आपने वो बेच दी, and you went back। So I would like to know a little bit more about ups and downs, and also how do you change from owner managed company to managing the ownership? There is a difference between the two। Yeah, owner manage में आप ownership को, यानी as a owner you manage the company, but in the managing ownership you own the company but you get it managed through the professionals। तो ये हमारा यही सोच था कि 2004 में professionals manage कर लेंगे और हम लोग free हो जाएंगे, and that is where I diversify। Actually it was a good thing because I knew my own strength as to where all I can diversify, but it had its own pitfalls, because there are some lessons which you have to learn, that while giving charge to the professionals to manage, you also have equal responsibility to see that strategy is completely under your leadership, and entrepreneurial drive to get into new areas should be with you. So that was something which really we missed out, but we came back in force in 2010. And that was the time when we said that, we have to rebuild the whole company. And we started expanding. We, the kind of support we got from all the people in rebuilding the company, we expanded from 1.4 billion tablet capacity to 5.6 billion tablet capacity. We became the world's largest formulation company dedicated for exports. Even today, all our drugs from the Pondicherry factory are 100% exported. We scaled up our capacities. What we did was, whatever we do, we said that we should be the world's either number 1 or number 2. Today, if you see, Sassoon is world's number 1 in at least 10 drugs. Even in ibuprofen, we are the world's largest. Not that we started first. We were not the inventor of ibuprofen. But today, we have the credit that whatever drugs we make, we give it back to the innovators themselves. Like ibuprofen, we were selling it to Boots. Ranitidine, we were selling it to Glaxo. Nizatidine, we were selling it to Eli Lilly. Like that, we have umpteen number of examples where we have sold our drugs to the companies. But ups and downs in life are very many. I have seen many ups and downs in life. That's why I always said that every handicap has to be converted into an opportunity. मेरा उसमें एक ही example है कि this is my own device example, which I say that Earth is made of water, H2O. Your body is made of H2O.
And your life is also made of H2. And what is H2O in life? In life, you will get a lot of handicaps. Everybody has handicaps. Even I have handicaps. Anybody else, Sanjay ji has handicaps. Everybody has handicap. But how to convert that handicap into an opportunity? So handicap to opportunity, if you learn that, I think it is a wonderful journey which you can really enjoy. I enjoy converting all my handicaps into an opportunity. Perfect. Abhijit, perfect answer on that, right? Sassoon, owner managed to managing the ownership. मेरा अगला क्वेश्चन है और उसके बाद और एक क्वेश्चन रहेगा, बाद में मैं ऑडियंस के लिए ओपन करूंगा. काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं वेलकम करूंगा हमारे प्रेम जी गोदा एप्का लैबोरेटरीज के हैं, हमारे सतीश जी पारक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ जीतो एपेक्स, ये भी लाइन पे है, शांतिलाल जी मारू लाइन पे है और सब महानुभव जो अवेलेबल है ऑनलाइन, सबका मैं स्वागत करता हूँ. सबका आभार. बहुत सारे लोग आए हैं, धन्यवाद सभी का. और अपने दौलत जी जैन चेन्नई से है और आपके सब वेल विशर्स है अभय जी. अगला क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपका क्या बोलते हैं, आपका की है, की टू द लॉक. आप जब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप, व्हाट फैक्टर्स डू यू फोकस ऑन, हाउ डू यू रेज द इक्विटी एंड हाउ डू यू फाइंड द क्वालिटी पार्टनर्स. और अगर आप एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो कंपनी थी यूएस बेस्ड, आपकी जो कंपनी थी विजनरी आरसीएम इन्फोटेक, जिसको यूएस बेस्ड कंपनी कार्लाइल ने टेक ओवर किया था करीबन 500 करोड़ के लिए. तो इसके थ्रू अगर आप मेरे को शॉर्ट में अगर आंसर देते हैं कि हाउ डिड यू रेज द इक्विटी, फिर पार्टनर्स कैसे चुने, एंड हाउ डिड यू रेज इट टू दैट लेवल ऑफ 500 करोड़ मच अर्लियर ऑन. Thank you very much. It's a very interesting question because I love to help entrepreneurs, and I'm very glad that in my life I could help at least more than 50 entrepreneurs build their companies. This has been my journey, and a lot of entrepreneurs come and talk to me as to what they can start. So I had an opportunity of one of the entrepreneurs who had just finished his MBA from America. अमेरिका से फिनिश करके MBA करके यहाँ पे आया था मेरे पास कि मुझे कुछ एक नया बिजनेस करना है. तो मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली. फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि मेरे एक वीक पहले किसी ने आया था कि टेक्निकल यानी मेडिकल बिल्डिंग एंड कोडिंग का मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे पास पैसा नहीं है पर टेक्निकल नॉलेज है. तो मैं बोला ये कंपनी, ये विचार बहुत अच्छा है, आप दोनों मिल जाओ और दोनों साथ में करो. और जब दोनों मिल गए और दोनों ने अमेरिका में जाके एक वीक पूरे उसकी परीक्षा की कि ये कंपनी कैसे चल सकती है, और आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस कंपनी को शुरू करने में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा. उस समय डॉलर का दाम था 44 रुपीस, यानी 4.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था. तो मैंने पूछा कि आप नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा. तो उन्होंने 88 लाख का इन्वेस्टमेंट बताया था कि मैं 88 लाख ला सकता हूँ. बाकी के जितने भी अमाउंट थे, सो वी हैड रेज्ड इट थ्रू आवर फ्रेंड्स. तो मैंने उस 10 मिनट में अपने 10 दोस्तों को फोन किया और बताया कि आज आपको 44 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में. और शायद मेरे रेपुटेशन के कारण या मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते उन्होंने सबने हाँ भर दी और सबसे 11 लाख रुपया मंगाया. तब 11 लाख आ गया, 1.1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया था. तो उससे कंपनी शुरू हो गई थी विजनरी आरसीएम, which was into building and coding. After 6 months, again we had to call for another 11 lakhs. तो totally 2.2 crores का इन्वेस्टमेंट हो गया. 2.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने के बाद 1 साल तक किसी से हमने पैसा नहीं मंगाया. तो सबका फोन आने लग गया कि क्या बात है, फैक्ट्री चल रही है ना या कुछ हो गया है. पर हमको विश्वास दिलाना पड़ा कि नहीं, ये फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है. तो बाकी रुपया हमने मंगाया ही नहीं. 2007 से 2017 में इस कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस की क्योंकि उनका जो सीईओ था, CEO was a very hardworking and very intelligent person. I should congratulate him, Rajesh Surana, and he did a wonderful job. So always when you ask me how do you choose entrepreneurs, or how do you which industry you choose, I am not averse to any industry.
I'm not averse to any industry. I want only a good jockey. I bet on the jockey, not on the horse. So ये क्या है, horse तो क्या है, अच्छा jockey भी आप उसके पास गधा भी दे दो तो घोड़ा बना देगा, पर किसी के पास bad jockey हो तो घोड़े को भी गधा बना देगा. तो ये हम लोग यही कोशिश करते हैं कि CEO जो होता है वो अच्छे से अच्छा हो और आगे इस कंपनी को अच्छे सुचारू रूप से चला सके. Believe me, this company on a revenue of from 2012, it was making a revenue of 100 crores, 150, 200, with an EBITDA of 70%, Wow. which is phenomenal. And this company was sold in 2017 December to Carlyle and at 480 crores for 84% of the company. Wow. This is a phenomenal success. This is not one success. I can tell you at least about umpteen number of success stories where entrepreneurs have really done very well in life and made a mark in themselves. So I'm very glad that I'm able to help these people. My day starts with 4:30 in the morning. I do my exercise, but 5:30 to 6:30 is dedicated for entrepreneurs. Lot of people come and discuss with me. I'm so happy that I'm able to contribute back to them. अभय जी धन्यवाद धन्यवाद. और आप थोड़ा हिंदी का प्रयोग कीजिए. मैं वेलकम करूंगा. हमारे विमल जी शाह केनिया से ऑनलाइन है. अगेन प्रेम जी गोदा, अपने चकोर जी गांधी पुणे से, and many others we have joined. We continue to have a good stream of people. मैं थोड़े अभी क्वेश्चंस थोड़ा पार्टिसिपेंट्स का भी ले रहा हूँ. हमारे सतीश जी परक अगर ऑनलाइन है तो उनका भी क्वेश्चन आया. सतीश जी हमारे MD अशोका बिल्डकॉन एंड जनरल सेक्रेटरी जीतो एपेक्स फॉर्मर. अभय जी आप. जय जिनेंद्र. सतीश जी बहुत प्यारे मित्र हैं. Abhay ji, salute to your leadership. Salute to such an inspiring personality you are. I am always a fan of yours. Thank you very much. I'm Abhay so ji, glad. I want to ask you, how can you so easily pursue opportunities as film studios and then move to nanotechnologies? So how do you really get into these? सतीश जी ये बहुत ही ये शायद इसका मैं आंसर मैं यही देता हूँ कि एक तो भगवान की कृपा है मुझ पे कि मैं कुछ समझ पा सकता हूँ बिजनेस को, और हर बिजनेस का एक ही मूल उद्देश्य यही होता है कि different fields so swiftly. Hello. ना आवाज बराबर आ रही है? सतीश जी आपकी आवाज आ गई है. एक तो चलेगा. जरा आप बता दीजिए संजय जी. हाँ सतीश जी ने एक सवाल ये किया है. सतीश जी आपकी आवाज नहीं बराबर आई है. तो भाई हाउ डू यू गो आफ्टर सो डाइवर्स फील्ड्स, और इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हो और इतने चैलेंजेस कैसे लेते हैं, जो आपने समराइज कर सकते हैं? वुड एक्सपेक्ट अ क्विक आंसर. नहीं, बहुत ही एक तो एक सादगी है. मैं कोई क्रेडिट अपने आप में नहीं लेता हूं कि मेरे कारण कोई काम सक्सेसफुल हुआ. मैं जितना भी सक्सेसफुल होता है दूसरों को क्रेडिट दे देता हूं. दूसरा, सबसे ज्यादा कोई भी फील्ड रहो उस फील्ड के माहिर लोगों को मैं चुन लेता हूं और उनको अपने पास रख लेता हूं. जैसे मैंने बताया था कि I keep more intelligent people around me than myself. Like संजय भाई है, जैसे जीतो इंटरनेशनल चैप्टर के साथ उनके साथ जाने का बहुत मौका मिला, तो ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो ये संजय जी के साथ जाते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है. वैसे आप हर फील्ड में अपने से ज्यादा और उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को साथ में ले लो तो अपने आप सक्सेसफुल हो सकते हो. थैंक यू. धन्यवाद सतीश जी क्वेश्चन के लिए. सतीश जी अगेन MD से अशोका बिल्डकॉन, हमारे जीतो के ग्रेट फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, जिनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का. हमारा अगला क्वेश्चन हम लेंगे प्रवीण जी गोदा से, जो अपने इप्का लैबोरेटरीज के प्रेम जी गोदा. हाँ प्रेम जी गोदा, जिनका प्लांट MP में लगा हुआ है. प्रेम जी आप ऑनलाइन हो गए तो क्वेश्चन पूछिए प्लीज. प्रेम जी आर यू ऑनलाइन? प्रेम जी बहुत प्यारे मित्र हैं, उनसे बहुत बार बातें होती रहती है और चलो उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है. प्रेम जी जब तक ऑनलाइन पे आते हैं मैं रिक्वेस्ट आ गए प्रेम जी आ गए.
I'm not hearing Premji. Is Premji online? प्रेम जी ऑनलाइन तो है, दिख रहे हैं। शायद, चलो जब तक वो ऑनलाइन आते हैं, आदर्श मैनेज इट। मैं अगला सवाल करूंगा अपने चकोर जी गांधी फ्रॉम पुणे। चकोर जी, आपका क्वेश्चन क्या है? चकोर जी का क्वेश्चन था। आदर्श, आप चकोर जी को ऑनलाइन ला सकते हैं? Yes, he has unmuted me. अभय जी, जय जिनेंद्र, नमस्ते जी। जय जिनेंद्र। सबके बेनिफिट के लिए आपने डिस्कस किया था, आपका एक मिशन है कि आप एंटरप्रेन्योर, किसके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, किसके पास पैसा है लेकिन आइडिया नहीं है, जिसके पास दोनों नहीं है मत आ जाओ, लेकिन ये दोनों में से जो आपके पास आ जाइए। और हमारे काफी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में या तो गाइडेंस चाहिए, या विजन चाहिए, या फिर फंडिंग चाहिए। तो आपका यह क्या मिशन है और हम उसमें कैसे जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली सर, मेरा क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर, कोई भी जब एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसको किस फील्ड में जाए, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, उसकी समझ नहीं होती है, तो हम लोग उसको समझ देते हैं। और जिसके पास समझ है, जो अपना प्रोजेक्ट लेके आता है, तो उसके पास या तो पैसा नहीं होता है, या तो उसके पास मार्केट नहीं होता है, तो हम लोग उसको मार्केट भी खोल के देते हैं। जैसे आईटी, जैसे हमने जो विशनरी आरसीएम शुरू की थी, तो उनके पास मार्केट नहीं था, तो हमने हमारे दोस्त पटेल जी जो वहां पे हैं अमेरिका में, उनके साथ बैठ के उन्होंने हमारे को मार्केट खोल के दी। तो हम लोग मार्केट भी खोल के देने के लिए तैयार हैं। वैसे अगर दोनों भी नहीं है कि बार हमारे पास आइडिया भी नहीं है, पर खाली श्रमदान दे सकते हैं, तो श्रमदान भी देने के लिए तो हम लोग, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमको वैसे भी चाहिए बहुत से लोग जो इंडस्ट्री को चला सके। क्योंकि आजकल इन्फोसिस को देखने के बाद आप देखोगे कि कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप का काम ज्यादा हो गया। एक एंटरप्रेन्योर अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता है, जैसे मैंने 1976 में मैंने अकेले कर दिया था, पर आज यू नीड अ मार्केटिंग हेड, यू नीड अ बिजनेस हेड, you need a manufacturing head, you need a finance and accounts. There are so many people who join together and do it. तो सब जने मिल के अगर काम करे तो इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। और आज जो जमाना कोविड के बाद आने वाला है, उसके लिए मैं सभी जैन भाइयों से अभी आग्रह करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री खोलो। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट opportunity which we will get in India. अभय जी, धन्यवाद उस आंसर के लिए। अभी मेरे पास थोड़ा चैलेंज है। मेरे पास करीबन 30 मिनट्स है। वी हैव फिनिश्ड 1 आवर, और 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है। अभय जी, रैपिड फायर आंसर, छोटे-छोटे में दे दूंगा। छोटे-छोटे में। तो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा अपने रवि भाई जैन, जेपीएफ डायरेक्टर, जिन्होंने आपको वेलकम किया। रवि जी, आप ऑनलाइन हैं? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू अभय जी, इट्स रियली ग्रेट लर्निंग सेशन। अभय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा नेगोशिएशन स्किल के बारे में, कि आप नेगोशिएशन स्किल में कुछ हम लोग को एनलाइटन कीजिए, क्योंकि आपने तो कई स्किल अप किए हैं और आपने एग्जिट भी किए हैं, तो कैसे आप नेगोशिएशन करते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ नेगोशिएशन स्किल्स में ज्यादा स्ट्रैटेजी का सोचे बगैर यही सोचो कि सामने वाला का कितना फायदा हो सकता है। आप नेगोशिएशन में अपनी होशियारी बताने जाओगे कि मैं ज्यादा होशियार हूं और मैं ज्यादा नेगोशिएट कर सकता हूं, तो लगेगा कि आपको जीत नहीं मिलेगी। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूं जापान के साथ और जापानीज लोगों के साथ मैंने नेगोशिएशन किया था कि 1994 में आई वांटेड अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम। उनके पास टेक्नोलॉजी थी और वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थे। मैंने अपनी कोशिश की कि मैं उसको कम से कम दाम में लूं, पर कम दाम में नहीं ले पाया। तो वी पेड $2 million in 1994. Imagine we paid $2 million for the technology. I came back India. डॉक्टर रेड्डी, जो अंजी रेड्डी मेरे खास दोस्त थे, वो उन्होंने मेरे को बहुत झाड़ा कि इतना रुपया देने की जरूरत क्या थी सिंपल टेक्नोलॉजी के लिए। पर मेरा उद्देश्य ये था कि इस टेक्नोलॉजी पेटेंट के अनुसार मैं अमेरिका में अपना माल बेच सकता हूँ। उसका 3 साल मुझे रुकना पड़ा, पर आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि we are the only producer of S+ ibuprofen in the entire world. And that negotiation with Japanese, if I had negotiated too much, I would have failed. But today I'm successful only because an umpteen number of cases I can give you in negotiation skills.
where we thought that we have lost the entire order, but they came back because of our honesty and sincerity. If you are honest in your dealings, if you are sincere in your dealings, I think no negotiation skills are required. You just have to be very clean and think that other person should win. This is what I learned from Japanese customers. So Abhay ji, आपने Great, thank you. अभय जी आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया. विन विन सिचुएशन, मेक श्योर अदर पार्टी विंस एंड इफ दे विन देन यू विन. फैंटास्टिक क्वेश्चन रवि जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. मेरा अगला क्वेश्चन है अपने कमलेश जी सजोटिया, अपेक्स सेक्रेटरी, जिनके प्रेरणा से हुआ. तो कमलेश जी आप लाइन है, आपका क्वेश्चन. या हेलो. हाँ बोलिए कमलेश जी. हाँ अभय जी. हाँ बोलिए जी. आप मेरे को ये जो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनी, इसमें पेरेंट्स और फैमिली और रिलीजन आपके लाइफ और सक्सेस में को शेप देने में इनका मदद कैसे रही? देखिए, जितनी भी सक्सेस आप आर्थिक स्थिति में, इंडस्ट्री में जितनी भी पालो, पर घर में अगर शांति नहीं हो तो वो शांति वो कोई काम की नहीं है. इसलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को, बच्चों को, जिन्होंने मुझे हर काम में मेरा साथ दिया. और आज भी जब कोविड के टाइम में घर में बैठते हैं तो बहुत सुकून मिलता है. और हमने एक ये सोचा कि हमारी जितनी भी बढ़ती होगी उसमें हमने 3 फिलॉसफी शुरू कर दी थी. कि हमारी फिलॉसफी होगी कि हम लिकर ट्रेड में नहीं जाएंगे, हम लेदर ट्रेड में नहीं जाएंगे, और हम नॉनवेज के कोई भी बिजनेस में अपना पैसा नहीं लगाएंगे. इवन शेयर में भी पैसा नहीं लगाते. तो इतना हमने एक नियम बना लिया था कि उसी फिलॉसफी को हम पालन करते हैं. और जैन सिद्धांतों के कारण आप देखो हमारे पे कैसे असर पड़ा. 2006 में हमने एक कंपनी खरीदी थी लंदन में. वो लंदन में खरीदी थी सिर्फ 1 पाउंड में. आप विश्वास नहीं करोगे, 50 एकड़ की जगह में 400 अंग्रेज जहाँ काम कर रहे हो उसको 1 पाउंड में खरीदी, क्योंकि वो 10 मिलियन पाउंड का लॉस कर रही थी. पर हमें पूरा विश्वास था कि हम उसको वापस पुनर्निर्माण कर सकते हैं. तो हमने पुनर्निर्माण करना शुरू किया, पर देखा कि वहां पे कैंटीन में नॉनवेज चल रहा है. ये तो हमने सोचा ही नहीं था. फिर हमको सबको, ट्रेड यूनियन को बुला के बात करना पड़ा कि भाई हमको ये नॉनवेज यहाँ पे नहीं चलेगा हमारे फैक्ट्री में. तो उन्होंने बोला कि हमको 1 वीक का टाइम दो, हम सोच के बताते हैं, तब तक नॉनवेज हम नहीं लाएंगे. 1 वीक के बाद वो वापस आए और हमारे पास कहा कि हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को आप 100 पाउंड पर मंथ आप कॉम्पनसेशन दे दो, हम लोग खाना बंद कर देंगे. हमारे लिए बहुत इजी था. ये 300 एम्प्लॉयज थे, 30,000 पाउंड्स का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था, और उसके सामने हमारे धर्म की रक्षा हो रही थी. तो हमने उसी समय उसको स्वीकृति दे दी. और आई एम टेलिंग यू, विद इन 2 years or by 2011 we turned around the company. A company which was making a loss of 10 million pounds started making a profit of 10 million pounds. और 2017 में हमने दिसंबर में उस कंपनी को बेच दी. I cannot disclose the amount. It is such a huge amount that it has been a turnaround in our life. And उस कंपनी में हमने इतना सीखा कि जो बल्क ड्रग बनाते हैं, जैसे प्रेम जी गोदाया, उनको मालूम है बल्क ड्रग बनाने में कितनी तकलीफ होती है. तो उस सिटी में, न्यू कासल में हमारी फैक्ट्री थी, और वहां से 36 न्यू ड्रग्स, अगर विश्व में पहली बार अगर कोई ड्रग लॉन्च होती है उसको न्यू केमिकल एंटिटी बोलते हैं, तो उसको 36 न्यू ड्रग्स हैव बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ सशून इन यूके. Amazing. So company bought with one pound or $1 turning into a fortune making company and still following the Jain principles. Thank you अभय जी. Simply amazing. यही तो इनका की जो लैंडमार्क बोलते हैं ना हम, जो सिंबॉलिक, ये इनकी है. अभय जी हमको क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट मूव होना पड़ेगा. बोलिए. और अपने विमल जी शाह जो बिटको वाले, जो हिंदुस्तान लीवर इंडिया की है, इनकी हिंदुस्तान लीवर इक्विवेलेंट कंपनी है, केनिया में, अफ्रीका में बहुत अच्छा काम करते हैं. विमल जी आप अगर कॉल पे होंगे विमल जी, तो आप प्लीज कुछ कमेंट दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, एनीथिंग. गुड टू हियर, सी यू विमल जी. Thank you very much. I think an excellent talk by Abhayji. One question that I have, Abhayji, fantastic journey that you've got. Where do you see globalization going forward? Do you see countries becoming self-sufficient and closing their borders?
or do you think this is going to be a bigger opportunity for us going forward? Thank you. Thank you, Vimalji. I'm so happy that you could participate. The entire world is going to de-globalize because people will think that every country will start protecting their own interests first. This is going to happen for the next 1 year. But eventually, a lot of people will start moving either to India or to Africa. Africa is a great place now to be in the manufacturing, or in India. I think deglobalization will happen for some time, but people will realize that they have to have dependable manufacturers. India, being a democratic country, being a English law following country, and people's strength, India has the biggest strength of the young generation. So India and Kenya or Nairobi or Africa are going to be the two big manufacturing centers and service centers for the entire world. Wow, thank you, Abhayji. So, audience who is learning, India and Kenya, gear your horns to focus on the pharma and the services industry in India and Kenya. We are talking to Vimal Shah for setting up a joint venture in Nairobi. We already have a factory in Nairobi. Yes, we visited that when we went to open the chapter, Abhayji, है ना? Very true. बहुत अच्छे विमल जी, धन्यवाद आपका. Thanks for that wonderful question. अगला क्वेश्चन थोड़ा हट से रहेगा अभय जी, ये एजुकेशन के फील्ड में है. ये है अशोक जी कोठारी, अपने मुंबई वाले JPF के चेयरमैन है. अशोक जी, आप ऑनलाइन पे हैं? जय जिनेंद्र अभय जी सर. जय जिनेंद्र अशोक जी. Sir, you as a very acclaimed and renowned industrialist and entrepreneur and social worker, you have put a lot of light and enlighten us on the industry entrepreneurship. But say something about the education. What will be the importance of the future education and technology application in the education field? मेरा सौभाग्य था कि 2005 में मुझे एजुकेशन फील्ड में एक कॉलेज खोलने का मौका मिला, साशुन जैन कॉलेज फॉर वुमेन इन चेन्नई, टी नगर. जो काम हम लोग CIO और CTO को रख के नहीं कर पा रहे थे, एक छोटे से वायरस ने ये काम कर दिया है. यानी डिजिटाइजेशन जो कॉलेज या स्कूल में आनी थी वो आ नहीं रही थी, पर ये इसके कारण डिजिटाइजेशन बहुत फास्ट हो गया. I think the whole world is undergoing a different kind of learning process. So जो learning process है वो completely बदल रहा है. Digitization होगा, अपने विचार बदल जाएंगे, अपने भी मीटिंग अभी वैसे digitization के थ्रू कर रहे हैं वही सामान्य हो जाएगा. और इसके कारण बहुत से लोगों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा. और मैं कहता हूं कि ये इट्स अ वरदान है, ये चुनौती नहीं है, ये वरदान है कोरोना, क्योंकि इसके कारण जो एजुकेशन फील्ड में और स्किल डेवलपमेंट में जो बदलाव आने वाला है और जो जरूरी है भारत के लिए. अगर भारत को विश्व का गुरु बनना है 10 साल में, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, अपनी यूथ को स्किल तो देना ही पड़ेगी. आजकल स्किल डेवलपमेंट पूरी डिजिटाइजेशन के माध्यम से हो जाएगी. और अपने को जो डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा या दूसरा आ जाएगा, उसके कारण काम नौकरी चली जाएगी. जितनी भी नौकरी चली जाएगी, पर आर्थिक व्यवस्था में कोई कमी आने वाली नहीं है. आई एम वेरी गंगो अबाउट द इंडियाज फ्यूचर एंड आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हाँ अभय जी, धन्यवाद उस आंसर के लिए, और थोड़ा रैपिड फायर करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दो चीजों में, एक तो मेरे दोस्त, मेरे नेबर, मेरे पार्टनर इन क्राइम अजय बोरा, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, टैलेंटेड गाय, और अजय जी, आपको एक तो दो बातें करनी है. एक तो आपको JPF के बारे में कॉन्सेप्ट बतानी है, एंड सेकेंडली आपका क्वेश्चन अभय जी के लिए प्लीज. या थैंक यू संजय जी. अभय जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि the way we heard your story, it can be encapsulated basically into your ability to spot the opportunity, connect the dots and then create a venture out of it. तो अभी जो कोविड की वजह से जो इतने बड़े डिसरप्शंस आ रहे हैं, तो और हेल्थ केयर तो आपका बैकग्राउंड है, इट इज योर होम ग्रोन बैकग्राउंड. सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द यंग एंटरप्रेन्योर्स हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं इन द हेल्थ केयर सेगमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर हु कैन कनेक्ट द डॉट्स? व्हिच आर द सेगमेंट्स स्पेसिफिकली इन हेल्थ केयर
which the entrepreneurs can look at? जीतो प्रोफेशनल फोरम जो काम कर रहा है, हम उसको आपको धन्यवाद देते हैं, आपको अशोक जी को, क्योंकि आपने इतने प्रोफेशनल फोरम्स के इतने चैप्टर्स की इतने मीटिंग्स की है, उसकी सराहना करता हूं और आपको धन्यवाद दे देता हूं। रवि जी को भी थैंक यू। Yes, yes, absolutely. दूसरा, जो फार्मा इंडस्ट्री है और जो फ्यूचर फार्मा इंडस्ट्री का है, उसका आप जरा ध्यान से देखिए कि WHO has already declared कि by 2050 70% of the drugs will be based on natural items. So हमारा जो एलोपैथी का ड्रग है या केमिकल का ड्रग है या बायोटेक्नोलॉजी का ड्रग है, we are big in biotechnology also because we were the first one to introduce the streptokinase, recombinant streptokinase in the country. जो फ्यूचर आने वाला है, जो हमने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, वो है साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। हमको मालूम है कि आयुर्वेदा इफेक्टिव है, पर आयुर्वेदा को साइंटिफिक एविडेंस के साथ अगर आप लाओ तो उसका जो मूल्यांकन होगा, उसकी जो बिक्री होगी, इट विल बी फिनोमिनल। आप ये सोचो कि एंटरप्रेन्योर, नए एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे पैसा यानी पैसा कट्ठू आई करके मत ही सोचो, कट्ठू लावना करके सोचो। पैसा कट्ठू लावना करके सोचो तो अपने आप आ जाएगा। आपने खाली सही दिशा मिलनी चाहिए, सही दिशा, यानी आप कोई नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो जो नेटवर्किंग आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो जीतो प्रोफेशनल फोरम के माध्यम से, JBN के माध्यम से, जो जीतो आर्थिक सुदृढ़ता अपने सब भाइयों में लाना चाहता है, उसके जितने प्लेटफॉर्म कर गए हैं उस सब का आप उपयोग करो। सब यंगस्टर्स को उसका उपयोग करना चाहिए। उसको आके आपको इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने के लिए जो तकार में कहीं खड़े नहीं पड़ता है, आप मिल सकते हो। सबसे प्रेम जी गोदा भी हैं, वो भी अपना गाइडेंस देंगे। मैं फार्मा में हूँ, मैं भी गाइडेंस दे सकता हूँ। और दूसरे कई फार्मा के विषय हैं जहाँ पे प्रगति बहुत हो सकती है, अनगिनत। जैसे अभी हमने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का भी हमने इम्यून बूस्टर के लिए काम शुरू किया है। अभय जी, थैंक यू। अजय, यस, थोड़ा JPF के बारे में 30 सेकंड्स में आप कवर करेंगे? हाउ इज इट गोइंग प्लीज? यस यस श्योर। अभय जी, जैसे आपने बोला कि गॉन आर द डेज वेयर कंपेटिटिव एडवांटेज यूज्ड टू बी द डिफरेंशिएटर, बट इन टुडेज वर्ल्ड कोलैबोरेटिव एडवांटेज इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। और वही ध्यान में रखते हुए जीतो प्रोफेशनल फोरम इज फॉर हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग, कि जैसे डॉक्टर्स लॉयर्स के साथ कनेक्ट करें, लॉयर्स आर्किटेक्ट के साथ, आर्किटेक्ट CA के साथ, ऐसे हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग जब होगा तो दैट्स व्हेन द मैजिक विल हैपन एंड वी कनेक्ट जीतो कम्युनिटी एट लार्ज। तो बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी जो जीतो की है, it will not be a fully sustainable integrated ecosystem unless the professionals are a part of, an integral part of that. And that's the purpose and the mission that Ravi ji, I and Ashok ji and everybody at JPF are driving us to bring in all professionals on one forum. And the last part is, so far in the past about 12 months, we have been successful in getting the first ever Jain head of intelligence bureau, Rajiv Ji Jain, who had come on this platform. 7-8 IPS had come in, Harji got them in, and we had the 5 lakh crore fund managers between Navneet Ji Munot, whom we heard today, and Prashant Ji Jain of HDFC. Both are Jains. They managed 5 lakh crores. They had come to our platform. Legal platforms had been, legal events have been rolled out where the regulators had come in. So to summarize it, Jito Professional Forum adds value to Jito community at large and horizontally to all the professionals. Thank you, Sanjay ji. Thank you. मेरे एक ही सजेशन था प्रोफेशनल फोरम के लिए कि we should create a platform for technology platform also, where all the technology heads join together and we focus on technology in the future. Yes, sir, sure. As a start on that line, what we have done is we had a brainstorming session and a panel discussion on the FANG gang. We had Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google come in on that platform. उसमें से सारे जैन थे except one, and there some people had come in from the Silicon Valley, some from Singapore. So that was a start, but your suggestion is well taken. We'll implement on that. Thank you. Ajay ji, thank you very much. And as I said, the JPF, which is a co-host of this team, that includes Sri Ravi ji from Kolkata, the chapter, the committee director, Ashok ji chairman, and again my neighbor and partner in crime, Ajay, a dear friend. Yes, Harji Surana. Yeah. And
Harsh Surana, who has also worked with us in the international wing for many years. You guys have done an amazing job. I'm happy to be part of this team, which is doing well. I have to move on. I'm looking at the time. So अभय जी, मैं आपके आंसर थोड़े शॉर्ट में एक्सपेक्ट करूंगा. अगला क्वेश्चन हमारा होगा शांतिलाल जी मारू, जो उदयपुर नरेश भी है और राजस्थान के जोनल चेयरमैन है. इनका आपके लिए क्वेश्चन है. शांतिलाल जी मारू, प्लीज. शांतिलाल जी. हेलो. यस. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. अभय जी जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. सर, आपके ये सारी मल्टी मतलब एबिलिटीज है जो बिजनेस में आपने केमिकल में भी किया है, फील्ड में भी किया है, हेल्थ में भी किया है, नैनो टेक्नोलॉजी में, इन सब में महारत हासिल करके सक्सेस की सीढ़ियां चढ़े हैं. तो इसमें तब मैं आपसे क्या इन सब का तो सुन के बहुत हमको प्राउड हुआ है. और मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा आपसे डिफरेंट है कि आप काफी सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और उसमें आपने काफी बड़े काम किए हैं. जैसे हमारे जीतो में भी आप भी काफी अरसे से जुड़े हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट है. तो हम लोगों को कृपया आप थोड़ा ये बताएं कि हम समाज से जुड़ के और समाज की उत्थान और प्रगति के लिए कैसे काम कर सकते मिलके सब, मतलब इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें तो हम मिलके और थोड़ा समाज के उत्थान के लिए आपकी विचारों से थोड़ा अवगत कराएं आप. नहीं, बिल्कुल ये बहुत जरूरी भी है और जीतो ये प्लेटफॉर्म सबको दे भी रहा है, क्योंकि जीतो के साथ मैंने 10 साल से यानी 2007 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्टर्स जब मैं बना था मैं भी जीतो में था और बाद में जीतो इंटरनेशनल विंग में संजय जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला. हम दोनों केन्या गए थे, जापान गए थे और उनके साथ जो सीखने को मिला मुझे कि कैसे लोगों के साथ, विश्व के लोगों के साथ भी हम कैसे जुड़ सकते हैं. उसके साथ साथ सोशली हमको कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड ने ये सिखा दिया है कि आप स्वार्थी नहीं हो सकते हो. स्वार्थी बन के आप कितना कमा लोगे और कितना ऊपर ले जाओगे. इसके लिए सोशली आपको ये करना है कि अपने साथ साथ सहधर्मी भाइयों का या लोगों का कितना भला कर सकते हैं और कितने लोगों को अपने साथ उनको अपने उठा सकते हैं. जैसे मैंने 50 entrepreneurs को I have helped them out. I feel proud about it because it's not that I have gained for myself, but at least I could give direction to so many. तो वैसे ही आज भी अगर अपने 50 नहीं 5000 entrepreneurs शुरू कर दें तो because the future is of India. तो 2030 तक अगर 5000 entrepreneurs खड़े कर दें, छोटे छोटे बिजनेस भी करने दो, उनकी अपनी खुद की क्षमता बढ़ेगी and we'll be net employer and not employee. तो अपने को उसमें पहले ध्यान देना चाहिए. दूसरा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप बहुत से चेंजेस ला सकते हो और सोशल कॉजेस में आप ऐसा मत करो कि उनको आप पे निर्भर होना पड़े. स्वावलंबी बनाने का कोशिश करो. उनको स्वावलंबी बन जाएंगे तो अपने आप वो दूसरों की भी मदद करेंगे. ये गणपत जी के साथ बात चल रही है और उसका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी वो लेके आ रहे हैं. जैसे अभी कोविड के बाद जो स्थिति आने वाली है जहाँ पे बहुत से लोगों के बिजनेस चले जाएंगे, उनके लिए कोई काम नहीं रहेगा, उनको कैसे स्वावलंबी बनाने, उनको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़े, उसकी पूरी एक स्कीम तैयार हो रही है. एंड आई एम श्योर जीतो विल फाइंड आउट अ ग्रेट आंसर फॉर दिस. और मेरी तरफ से मैं सोशली जितने भी काम करता हूँ, मैंने 30 साल पहले मैंने जब पिताजी की शमशान घाट गया था दाग देने के लिए, तो शमशान घाट देख के मुझे इतना तरस आ गया कि ऐसे भी शमशान घाट इतने गंदे होते हैं. तो आई टुक अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ एंड आई चेंज द एंटायर क्रेमेटोरियम. इन लास्ट 30 years आई बीन मेंटेनिंग इट. गवर्नमेंट हैज बीन काइंड टू गिव मी द परमिशन टू मेंटेन इट. सो वहां पे ऐसा बोर्ड भी लगा दिया है कि पीपल डाई टू कम हियर. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू. अभय जी बहुत अच्छा. आई थिंक आप लाइव सेल के थ्रू लोगों को लाइव भी बनाते हो थ्रू द स्टेम सेल्स, और आप जब उनका क्रिमेशन का टाइम होता है तो आपने क्रिमेटोरियम भी बना के रखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. वेरी वेल. एब्सोल्युटली. 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए अभय जी और मेरे को रैपिड आंसर चाहिए एज वी आर मूविंग नाउ इनटू 80 minutes. तो आप जितने फास्ट आंसर देंगे उतना जल्दी होगा. Of course, the young generation, the young entrepreneurs are very important. हमारे यूथ विंग के जो नेशनल सेक्रेटरी आकाश जैन और आज जो आईटी का होस्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ, इनका भी एक आपके लिए क्वेश्चन है. आकाश जैन, जीतो यूथ विंग, प्लीज. Thanks, Uncle. Pranam, Uncle. Jai Jinendra. Actually, I just wanted to share with everyone that we had the opportunity to meet Sir
during our visit to Chennai last year, and we also experienced his hospitality. We had been to his factory, amazing factory for lifestyle. Uncle, just sir, आपके लिए एक quick question. What would be your advice for young entrepreneurs like us? Like, what qualities or skills should we develop so that we can make great companies? You are an entrepreneur who started with zero and had so many different ventures throughout your life. What would be your advice be for us? My only advice, I'm telling you, you don't have to be intelligent. You don't have to be very wealthy. You don't have to be very knowledgeable about everything in the world. The only qualification which a young entrepreneur requires is a strong character. If he is honest, if he is sincere, and if he is hardworking, everything else can be bought and borrowed. The only thing you cannot buy is trust. So if you are trustworthy and if your behavior is good, I think you can win anything in this world. We are there to guide you. We are there to guide you with knowledge, money, everything. But we cannot guide you on your character. And that's the only thing which is required in the entrepreneur. And the fire to succeed. And the opportunities are plenty. So character, fire to succeed, and the courage to succeed. Very all important. अभय जी धन्यवाद. अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा इनके लिए अपने दौलत जी जैन जो चेन्नई चैप्टर के चेयरमैन है. दौलत जी जैन फ्रॉम चेन्नई. हमारे प्रिय चेयरमैन है चेन्नई के. दौलत जी है. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र दौलत साहब. अबे साहब, आपके साथ में हम जितने भी रहते हैं वो कम होती है टाइम. और मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि अबे साहब अगर हम कहीं जा रहे हैं और अबे साहब भी वहां जा रहे हैं तो कोशिश यही रहती है उसी फ्लाइट में जावे, ताकि ये तो एक स्वार्थ है. हमारा सौभाग्य रहा कि आप हमारी फैक्ट्री न्यू कासल भी साथ में आए थे. अरे वो तो मजा आ गया कि भाई गोरों ने हमारे को रखा, आपने गोरों को रख दिया. हाँ, आपका क्वेश्चन दौलत जी. हाँ अबे साहब, मेरा एक पूछना है कि आपने अपने लाइफ में जो हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से आपने सब अचीव किया. बिजनेस अचीव किया, सोशल अचीव किया, फाइनेंस अचीव किया. लेट मी नो व्हाट कीप यू गोइंग नाउ दैट यू अचीव्ड एवरीथिंग. ऐसी क्या है आपके अंदर जो हमारे को भी पता चले ना. अभय जी 1 मिनट. सीक्रेट क्या है? 1 मिनट में देना है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. बोलिए बोलिए संजय जी. नहीं अभय जी आंसर इन 1 मिनट, क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहा है. नहीं, इसका बहुत ही सिंपल है. अगर आपने आज सुबह या कल रात को मोदी जी का जो 1 आवर का जो सेशन था वो सुना होगा कि अपने आप में असंतोष रहो. यानी संतोष जब हो जाए कि मैं सब कुछ पा लिया है तो उस समय कोई नया काम ढूंढो और नए काम के लिए आगे बढ़ो. इसी के कारण ये जो मेरा काम है, आई ऑलवेज चेस technologies, I chase new ventures, and I'm always satisfied. I'm not that I want to chase money. Money is last thing in my mind. Great. Abhay ji, thank you उसके लिए. So never, don't chase the money. Money should follow you as the result of your work. So in other words, I say always don't chase money, chase value. Chase value in life. Yes. अभी जी हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेर जी काले, जो हमारे इनकम टैक्स के सीनियर कमिश्नर है महाराष्ट्र में. सुमेर जी काले जी का कुछ एसओपी के बारे में क्वेश्चन था. सुमेर जी अगर आप ऑनलाइन होंगे तो क्वेश्चन पूछिए प्लीज, एंड आंसर इन 1 मिनट. सुमेर जी काले, आप ऑनलाइन हैं? Yes sir, he's online. I'll just unmute them. Yes, please. सुमेर जी काले का हमारे यहाँ पे काफी कंट्रीब्यूशन है जैन कम्युनिटी में. इन हेल्पिंग ऑफ द जैन कम्युनिटी, इज अ टॉप टियर ऑफिसर इन सेल टैक्स, और काफी गाइडेंस करते हो. जय जिनेंद्र सर, आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा. यू आर आइकॉन फॉर ऑल दी यंग एंटरप्रेन्योर्स. बट आई हैव हर्ड राइट नाउ. पहले तो थोड़ा पता था, मेरी मिसेस जो चेन्नई गई थी तो वो सब बता रही थी. धन्यवाद. लेकिन थैंक्स. मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड अलग है. वी ऑफिसर्स आर पोस्टेड आफ्टर 3 years इन डिफरेंट फील्ड. कल कॉर्पोरेशन थे, आज टैक्स है, कल क्या है, एंड यू आर हैंडलिंग डाइवर्सिफाइड फील्ड्स. तो आप एसओपी कैसा बनाते हैं? आपका एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, हाउ यू फाइनलाइज? थोड़ा सा बताएंगे तो सबको गाइड होगा आपका.
नहीं, बहुत सिंपल है। एसओपी यही रहना चाहिए, जिंदगी का एसओपी बनाना चाहिए, क्योंकि अपने कार्य का तो एसओपी बदलता रहेगा। जिंदगी का एसओपी यही रहना चाहिए कि हम हमारी तरफ से दूसरों को कितनी मदद दे सकते हैं। क्या बात है। And we have to be honest in our approach. We don't have to do anything, any favor, but we can guide them. What people lack is guidance, and people, officers like you, who are at the helm of affairs, can guide people to be honest. I think this is what we learned in our family. And आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हमारे इनकम टैक्स की यहाँ पे यार फाइलिंग वगैरह सब प्रोफेशनल कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, तो we have been following honesty to the core, and we ensure that we help out as many people as possible. अभय जी, मैं और एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। कोई लेडीज, एक लेडीज का क्वेश्चन था जिनका नाम मैं अभी जानता नहीं हूँ, बट दे सेड व्हाट बिजनेस शुड लेडीज परस्यू, और मैं कोई डिफरेंस नहीं देखता लेडीज वर्सेस द मेंस, बट शॉर्ट में आप क्या आंसर दोगे? लेडीज के लिए अगर बिजनेस परस्यू करना है, एनीथिंग डिफरेंट यू वुड रिकमेंड? Ladies are more skilled than men, and ladies can do a wonderful job. I have a lot of business opportunities lined up for them, like disinfectants, hand sanitizers, the various kinds of new innovation products which they can bring about. और अगर उनको साड़ियाँ ही बनानी है या कुछ भी करना है, तो उसमें जो नई स्किल्स जो लेके आ सकते हैं, उसमें अगर कुछ भी मदद चाहिए तो I'll share my email ID and I'll be too happy to guide them. We are running a women's college. Actually, we come out with a lot of ideas for the retailing industry. हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है रिटेल का, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोग रिटेल के बारे में हम लोग बहुत सी जानकारी देते रहते हैं, and that will be a great opportunity for all the ladies to take advantage of the retail industry from our college. थैंक्स अभय जी। एक क्वेश्चन रहेगा, मुझे यादगार है, आपके साथ मैं जापान ट्रैवल कर रहा था, जब इनकी कन्विंसिंग पावर की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाउ डज इट कन्विंस पीपल विद द ट्रस्ट एंड इंस्पिरेशन। तो हम कोई टूर कर रहे थे टोक्यो में, हमारे साथ एक जापानीज लेडी थी, टूरिस्ट, ब्यूटीफुल लेडी, जो हमारी टूरिस्ट थी उस टाइम पे, हमको दिखा रही थी टोक्यो, और हमारे पास तो अपना इंडियन खाना था, वहाँ के चेयरमैन के साथ हमने कचौरी वगैरह ले ली थी। अभी कचौरी क्या चीज है हम सबको पता है इंडियंस को, पर जापानीज लेडी को तो बिल्कुल पता नहीं थी। और अभय जी उस लेडी को बोले भाई कचौरी आपको खानी है, तो बोले मैं 4 घंटे के बाद खाऊंगी। वो कंफ्यूज थी कि ये चीज क्या है, मैं खा पाऊंगी या नहीं। अभय जी ने उसी टाइम पे गाड़ी में उसको कचौरी खिलवाई, तब जाके राजी हुए वो। 15 मिनट लगे और वो जापानीज भी कन्विंस्ड हो गई। तो इनकी कन्विंसिंग पावर माइंड ब्लोइंग है, और बहुत अच्छे से करते हैं। जापानीज भी बोल लेता हूँ। हाँ, जापानीज भी बोल लेते हैं अभय जी। अभय जी, मेरा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रतलाम चैप्टर के चेयरमैन है मुकेश जी, जो आपने होस्ट है आज के इवेंट के, रवि भाई के साथ में, जेपीएफ के साथ में। मुकेश जी का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और अपने पास अभी 10 मिनट बच गए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं पर मैं टाइम का भी देख रहा हूँ। तो मुकेश जी, जैन, हाँ आपका क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, जय जिनेंद्र अभय जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपकी सारी बातें सुन के मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है, इंस्पायरिंग लग रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, कि आपने यू हैव डन लॉट ऑफ वर्क विद जीटो एंड कम्युनिटी, currently working as vice president Jito Apex. Describe your journey connecting with Jain across the spectrum and how it has helped you. It has been a wonderful experience. और एक तो संजय जी के साथ जब जीतो इंटरनेशनल विंग में काम करने का मुझे मौका मिला, तो सब पूरी दुनिया के लोगों में जो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव जो जैनों में है पूरे विश्व में, उनके साथ मिलने का काम मिला और काम करने का मौका मिला। और अभी हाल ही में जीतो इंटरनेशनल विंग में जब जीतो गौतम जी ओसवाल और हम लोग सोच रहे थे कि आगे की क्या सोच होनी चाहिए कि जीतो इंटरनेशनल विंग में सबको जोड़ा जाए, तो उसके लिए पहले हमने पूरा एसओपी बनाया, पूरा सिस्टम बनाया, और ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल हो। उसके लिए मैंने और गौतम जी ने शायद 10 मीटिंग की होगी, पूरे विश्व के लोगों के साथ जूम मीटिंग करते थे, सबको समझाते थे, सबके प्रश्न होते थे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, गौतम जी भी अगर हैं तो गौतम जी भी बता सकते हैं कि हमने पूरी एक बुक बना दी है कि कैसे नई चैप्टर खोलना चाहिए इस विश्व में,
उसके साथ कैसे विश्व में आप जुड़ सकते हैं। और इसका जो फायदा होगा, जब विश्व में ज्यादा जैनों पे फायदा, तो अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग के लिए भेजना है, उनको कुछ नया सीखना है दूसरी जगह, जितना बाहर घूमेंगे अपने बच्चों को ज्यादा प्रोटेक्शन में मत रखिए। मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को ज्यादा बाहर भेजिए, सीखने के लिए भेजिए। जितना सीखेंगे वो ज्यादा वो अपने होशियार होते जाएंगे। तो गौतम जी, यानी it has been a great experience of mingling with international people. The potential they have, वो उनके पास सोच इतनी आगे की है कि उसका फायदा हम लोग बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं इंडिया में। अभय जी, अभी काफी चैप्टर से रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए, आपके साथ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप फोरम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें जितो मैसूर चैप्टर है, जितो उदयपुर चैप्टर है, जितो इंदौर चैप्टर है। तो आप काफी चैप्टरों के साथ में पार्टनरशिप का काम और एंटरप्रेन्योरशिप और एंजल इन्वेस्टमेंट, यंग एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन एक जो रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं इसमें आपके फेल्यूर की बात कर रहा हूँ। तो पूछना है कि भाई आपके लाइफ में एनी बिग फेल्यूर्स दैट यू रिग्रेट एंड व्हाट डिड यू लर्न क्या किया आपने, वो बताना ज्यादा जरूरी है। नहीं, फेल्यूर तो हुए हैं मैं, पर रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि फेल्यूर जो होते हैं वो नई सोच सिखाते हैं अपने को। मेरी 2 फेलियर्स हैं, आई कैन टेल यू। वन इज अबाउट इन 2005 आई वेंचर्ड इनटू मेकिंग टेलीप्रेजेंस जो सिस्को का था, उसको यहाँ पे अपनी प्रणाली में लेके आने के लिए मैंने कोशिश की और बहुत सक्सेसफुल भी हुए। पर सीईओ की कुछ बाधाएं थी, तो सीईओ आगे नहीं बढ़ पाए, तो हमने उस कार्यक्रम को बंद कर दिया। तो आई डोंट कॉल इट एज अ फेलियर, बट इट हैज बीन अ लर्निंग लेसन। Similarly, I invested into a company in 1996 called Green Gold Polymers. आज भी भारत से कैस्टर ऑयल पूरा 80% द वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया करता है और एक्सपोर्ट करता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं करता है। तो उसकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, देयर इज ओनली वन नायलॉन व्हिच इज मेड फ्रॉम कैस्टर ऑयल, व्हिच इज फ्रॉम नेचुरल ऑयल, इज कॉल्ड नायलॉन 11। आज भी उसकी प्रोडक्शन पूरी जर्मनी में होती है, फिर अपने खरीदते हैं वापस। क्यों नहीं यहाँ पे करी जाए? उसके लिए मैंने पूरा आविष्कार के लिए पूरा पैसा डाल के पूरा प्लान भी रेडी कर दिया था, पर आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि शासन के काम में फंस गया था। तो आई कुड नॉट, बट द प्रोजेक्ट इज रेडी, एनीबडी कैन टेक इट। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, पीपल स्टिल कैन ट्राई दिस कैस्टर ऑयल टू नायलॉन लेवल। थैंक यू अभय जी। अगले 2 क्वेश्चन, एक मेरे प्यारे दोस्त, दोनों दोस्त है, एक गौतम ओसवाल जिसके साथ मैंने काफी काम किया, वो करेंगे। 1 मिनट है अपने पास, उसके बाद में प्रकाश जी कानोगो। तो गौतम भाई ऑनलाइन है। गौतम जी आपका क्वेश्चन। या पहले तो अभय जी जो अभी बताया आपने बहुत ही बढ़िया था। अभय जी की हेल्प से पूरा इशू रिजॉल्व हो गया एंड आई थिंक ऐसा बनाया है कि आगे इसकी जरूरत भी नहीं है इसके लिए। थैंक यू अभय जी। एंड अभय जी मेरा क्वेश्चन है कि यू आर इन बेस्ट एम्बेसडर फॉर गोमा, द प्रोडक्ट नॉन लेदर व्हिच इज गेम के लिए इससे बढ़िया क्या हो। अभी इसकी आपके जैसी ब्रांडिंग बनानी है तो व्हाट 3 बेस्ट थिंग यू एडवाइज अस? फ्री में एडवाइस गौतम भाई। हमारे गुरुजी है, गुरुजी को पैसा थोड़ी देते हम। अभय जी ब्रांड एम्बेसडर अच्छा चुना है। आफ्टर मीटिंग गौतम जी, मैं पूरे कन्वर्ट हो गया हूँ। पूरा जितना भी बेल्ट या शूज या जो भी पहनता था पहले, जो फैशन के पहनता था, अभी पूरा जैन यानी नॉन लेदर ही पहन कर रहा हूँ, और ऑफिस में भी पूरा नॉन लेदर ही है। And everything has changed, and I think we will talk separately, Gautam ji. I can't give you any advice immediately, but we can work on some fantastic ideas. अभय जी, अभी अगला क्वेश्चन हमारे प्रकाश जी कानगो, जिनके साथ आपने संत ह्यूमन में काम किया। प्रकाश जी कानगो ऑनलाइन है। और नेक्स्ट हर्ष सुराना को ले लीजिएगा संजय जी। हर्ष सुराना, चलिए हर्ष भाई, हर्ष सुराना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लीगल क्वेश्चन नहीं पूछे। नहीं, वो अपने साथ में काफी रह चुके हैं इंटरनेशनल में आदि चीजों में। You will have to unmute. Yeah. My question to you, sir. We have seen in Jain families, the youngsters go and move towards technology. But here we have one example where you are much ahead of the youngsters. So what drives and what motivates you for this young approach and attitude? नहीं, जैसे बताया था, असंतोष रहता हूँ
नई टेक्नोलॉजी के लिए इतना असंतोष रहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, आगे कुछ करना है। तो आई लव टेक्नोलॉजीज, बट आई इंश्योर दैट आई गैदर द राइट पीपल फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी एरिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप बराबर संभाल नहीं पाओ तो इट कैन बिकम अ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी। सो हाउ टू मेक इट इनटू अ कमर्शियल सक्सेस। सी टेक्नोलॉजी, मेरे पास जो 1200 साइंटिस्ट हमारे पास काम करते हैं, और 1200 साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि वो नोबेल प्राइज विनर है, पर उनको समझाऊं कैसे कि भाई नोबेल प्राइज विनर नहीं है, तुम्हारी आइडिया कमर्शियली सक्सेस होनी चाहिए ना। तो जो कमर्शियल सक्सेस का, जो टेक्नोलॉजी को कमर्शियल सक्सेस में लेके आना है, स्टेम सेल को या नैनो टेक्नोलॉजी को, दैट इज द स्किल व्हिच आई ब्रिंग अबाउट। And people think that I own the technology sphere. It is not so, but I continuously put my money into research. So I'll be too happy to be guided by the youngsters, because youngsters से मैं बहुत सीख सकता हूँ। तो मैं सीखने के लिए हर बार सेमिनार जाता हूँ या कहीं पे ट्रेड शो जाता हूँ, तो वहाँ सीखने को बहुत मिलता है। और अभय जी कहते हैं there is never too late to learn. The people who invest in learning make more money than people who only invest. COVID days I have been reading lot of books. So at least I have read 3-4 books I would have completed. आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मित्र श्री प्रकाश जी कानूगो मुंबई से, इनके साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है। प्रकाश जी कानूगो, आप ऑनलाइन हो गए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 1 मिनट। ये प्रकाश जी आने के पहले मैं बता देता हूँ कि रतलाम और इंदौर से मेरा बहुत कनेक्शन है। जैसे परमालय जी हैं, नमस्कार अभय जी। उनके साथ मेरे रहने का, सीखने को और मेरे तबीयत को ठीक करने का मुझे मौका मिला। बोलिए प्रकाश जी। अभय जी, आपने मेरे को संटी उमन से इंट्रोड्यूस कराया था। हाँ। और यानी संटी उमन यानी अन्न से ब्रह्म की यात्रा, मैं उसको काफी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ और काफी मेरे को अच्छा लगा। तो आप अपने जो जीतो के मेंबर है उनको आप ये संटी उमन और अन्न से ब्रह्म की यात्रा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जो परमालय जी जो इंदौर से इस कार्यक्रम को चलाते हैं, उनके साथ अगर 10 दिन भी बिता लो, यानी जब वो अपना कैंप अलग अलग जगह करते हैं, उनका कहना है कि अन्न ही दवा है, दवा को अन्न मत बनाओ। तो उनके विचार जो है और उनके जो खाने की और पीने की तरीके हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं। मैं तो कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उस कार्यक्रम में जुड़ें और सन टू ह्यूमन के प्रोग्राम के साथ अपने शरीर को, अपने तबीयत को ठीक रखें। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस कठिन समय में ज्यादा अपने फोकस अपने हेल्थ पे करें, अपनी फैमिली पे करें। थैंक यू अभय जी। मुझे अगले 2 क्वेश्चन लेडीज से लेने होंगे। लेडीज के क्वेश्चन आए तो कोई भी लेडीज होगी, जैसे चेन्नई से मिसेस दुग्गड़ है, अगर दुग्गड़ ऑनलाइन होगी, फिर आपने वापिस से भारती बहन होगी या दीपक, कोई भी होगा, एनी लेडीज कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई से दुग्गड़ फैमिली से है कोई? एनी लेडीज वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मदर्स डे है, उनको तो बोलना ही चाहिए। हाँ, नहीं तो हम उषा जी को, अगर उषा जी को होंगे तो उनको खड़ा कर देते हैं। उषा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक भारती सुमारिया जी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। भारती सुमारिया जी गुजरात से है, एंटरप्रेन्योर है। बोल रहे हैं, अनम्यूट करो उनको। हाँ, भारती सुमारिया जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र, आपका सेशन आप पूछ लीजिए पहले। हेलो। बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है ना ये। मेरे पास हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसमें हम काम कर सकते हैं और लाखों महिलाओं को इसमें रोजगार दे सकते हैं, जिससे हमारी संस्कृति का भी संरक्षण होगा और हम एक सामाजिक उद्यमिता की भावना को भी विकसित कर सकेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। मैं जीतो लेडीज विंग रायपुर से। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो आप इस काम को आगे बढ़ाइए। और गढ़ है राजस्थान, जैसे जयपुर, और वहां से हैंडीक्राफ्ट के जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं वहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ भी है सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ भी बहुत बड़ा हब है। मधु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, हम इसको ईमेल से आगे डिटेल में लेंगे। अभी हमारे पास है भारती जी सुमारिया जी, वेरी डायनामिक एंटरप्रेन्योर। आपका अगला क्वेश्चन प्लीज।
जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र सर मैं भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हूँ। मैंने अपने आप सब जैसे आपने बहुत स्ट्रगल करके किया है, मैंने अपने आप ही सब जो किया है सब किया है। मगर आगे यहाँ पे जब जीतो में आते हैं ना, वहाँ देखा नहीं कि लेडीज कहाँ एंटरप्रेन्योर है नहीं ज्यादा। कोई भी प्रोग्राम में हेलो नहीं, लेडीज एंटरप्रेन्योर नहीं है तो वो एक मौका है। जैसे अफ्रीका को किसी ने भेजा था कि वहां जाके देख के आओ कि चप्पल वहां पे बिकेगी नहीं बिकेगी। एक आदमी आके बोला कि वहां चप्पल बिकेगी नहीं, कोई यूज ही नहीं करता है। दूसरा बोला कि सबसे बड़ा मौका है जहाँ पे चप्पल बेच सकते हो। तो जहाँ पे नहीं है उस कमी को आप पूरी कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योर्स 10 नहीं 100 एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हो। सर वो तैयार हूँ मैं बनाने के लिए। थोड़ा जीतो में सब लेडीज को कैसे करना चाहिए वो आप गाइड कीजिए। जरूर, हम मिलके करेंगे साथ में। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विन। Sir, I am SSC pass and I have done this much business. Then great. I am proud of you. I think. धन्यवाद। So अभय जी एक लाइन में SSC पास है भाई, सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम देके पास है। वेरी नाइस। और अभी डॉक्टर मनीषा जी आपका क्वेश्चन प्लीज। आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे 1 घंटा और 45 मिनट्स हो गए। अभय जी यू आर वेरी पॉपुलर। आई थिंक ये सेशन 4-5 घंटे का हो सकता है, बट टाइम की मर्यादा की वजह से हमको इसको अभी इस क्वेश्चन के बाद रैप अप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन डॉक्टर भारती का था इससे ऑनलाइन। नहीं, मनीषा जी थी ना। मनीषा जी, हाँ मनीषा जी आप है। मनीषा बापन्ना, डॉक्टर मनीषा बापन्ना। उसने यहाँ पे कमेंट करा है तो जाके वो बोल रहे हैं। अच्छा, इनका कमेंट क्या है? आकाश जी आप इनका कमेंट पढ़ सकते हो? एनीवेज मीनवाइल और एक क्वेश्चन, एक बात कहूंगा अभय जी और सब ऑडियंस के लिए, क्या एक चीज होती है जैसे कोविड-19, तो हर लोग इसको डिफिकल्टी समझते हैं और हमको इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई when the winds of change और wind of difficulty starts, ज्यादा करके लोग वॉल बना लेते हैं, बीट बनाते हैं, but the people who make it are they don't build the walls, they build the windmills. जो विंडमिल बनाता है वो पैसे बनाता है, जो वॉल बनाता है वो अंदर रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभय जी ने इस कोविड-19 में नैनो टेक्नोलॉजी की कंपनी बना के कोविड-19 के अगेंस्ट जो इनका जो इनका सैनिटाइजर है, that has been now going to 27 countries. So if you want to take a lesson from Abhay ji is take the obstacle or take the handicap or take the distress time and convert into opportunity. That's the big lesson. एक क्वेश्चन आपका आखिरी का अभय जी 1 मिनट में आपको देना पड़ेगा, is to do with the human resources. How do you hire people? This question is coming from Hemant Kanugo, who deals in human resources management. Hemant, quickly, we have 30 seconds. So, हेमंत जी पूछते हैं या मैं जवाब दे दूं? Hemant, is he unmuted? Others, is he unmuted? Hemant Kanugo. Can you hear me? Yeah. 30 seconds, please. Yeah, Abhijit, my question is that the way the industry which you're running, human resources is very important. So how do you select your manpower? Like, what is the strategy in selecting your manpower? मतलब आप जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उसमें manpower बहुत critical होता है. So I want to know that how do you select your manpower? Like, what 2 things you see in your manpower before selecting? Okay, thank you. As far as concerned, we take youngsters with the firepower to succeed. We don't see whether he is from this industry, knowledgeable in this industry, but we have a grueling training session. हमारा जो रिव्यू सिस्टम होता है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, बहुत स्ट्रांग है और उसमें हम ऐसा तैयार करते हैं कि 1 साल में उसका परखा जाता है कि ये आगे के लिए लंबी दौड़ का घोड़ा है या छोटी दौड़ का घोड़ा है। तो उस लंबी दौड़ के घोड़े को हम लोग इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो हमारे साथ छोड़ के वापस जाता नहीं और उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ समझते हैं। तो ये मैंने मुकेश अंबानी जी से सीखा था कि कैसे एम्प्लॉइज को साथ में रखना चाहिए और उनकी जरूरतों को कैसे पूरी करनी चाहिए। So this has been a great learning from me. I will share it in person, but take care of your employees. This is the only lesson I tell you, and respect them. Don't disrespect them in front of others. They will be your gems.
they will give life for you to succeed. And this is how worldwide we are running companies. We empower people to run the companies. We don't even go there. आज हमारी फैक्ट्री पूरे विश्व में चल रही है, सिंगापुर में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में, यानी पूरी जगह चल रही है, पर हम लोग कहीं जाते नहीं है. पूरा रिव्यू सिस्टम हमारा पूरा डिजिटाइजेशन में हो जाता है. अभय जी एक बात कहूंगा, age is just a mind game. Age, whether you're 5 years old or 70 years old, is immaterial. So long as your brain is functioning. तो एक phrase है English में, it says life is like riding a bicycle. So long as you keep moving, you will be balanced. And the moment you stop, you're going to fall down. So don't fall down and follow. Keep moving your bike. अभी इस कोविड के बाद मैंने एक निश्चय किया है कि मैं थोड़ा स्लो डाउन होऊंगा और मेरा काम अभी ज्यादातर सोशल काम में या अपने आप को स्वाध्याय में, उसमें अपना टाइम लगाऊंगा. तो ये मेरा एक निर्णय है. मैंने बच्चों को भी बता दिया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं आऊंगा. मैं मेरा समय या तो हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स और सोशल डेवलपमेंट और टुवर्ड्स स्वाध्याय. अभय जी धन्यवाद. सबसे विनती है कि सब अपने अपनी तबीयत का ख्याल रखें. Before I leave and before I say goodbye, please take care of your health. Health is more important. Wealth is not important. अभय जी टाइम बाकी है. अभय जी आप नैनो टेक्नोलॉजी का सैनिटाइजर सबको भेज दो तो सबकी हेल्थ बड़ी रहेगी. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे 500 प्लस सबको सैनिटाइजर भेज दो. जरूर. मैं कहूंगा जो आज हमारे इवेंट के होस्ट हैं और हमारे कमलेश जी सजोटिया जी भी वोट ऑफ थैंक्स देंगे. उसके पहले मैं कहूंगा हमारी जो बैकग्राउंड में टीम थी, एक आकाश जैन जो जितो यूथ के सेक्रेटरी है, बैकग्राउंड में हमारे होस्ट है आज. संजीता जो जितो एपेक्स है जिसने हमें हेल्प की, और साथ में हमारे जो दोनों चैप्टर्स है रवि भाई की टीम, जेपीएफ की टीम, अजय जी, अशोक जी और रतलाम चैप्टर, इन सभी ने इस कंट्रीब्यूशन दिया है और आपके टाइम का भी बहुत अच्छा रहा. उषा जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपको गढ़ाने में उनका भी काफी मेहनत रही है. बहुत मेहनत रही. और हमारी उसकी सोच भी अलग ही होती है, लेडीज की सोच, और उसकी सोच के कारण मुझे बहुत फायदा मिला है. और हमारी सिस्टर भी लगती है. इसके साथ अगर क्वेश्चंस तो बहुत है, पर मैं रवि जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम इनका कोई सेशन और फ्यूचर में लेंगे. और इसके साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमलेश जी सजोटिया जी को, क्या वो अपने वोट ऑफ थैंक्स दीजिए प्लीज. Before you give the vote of thanks, I see some messages that whether I am on the LinkedIn or Facebook. मैं WhatsApp भी नहीं देखता हूँ, मैं LinkedIn में नहीं हूँ, न Facebook में हूँ, न किसी पे हूँ, खाली emails देखता हूँ. तो please, if you have to connect with me, you can connect with me on the emails. हमारे कमलेश जी प्लीज. यस, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कमलेश जी. हाँ बॉस. आदरणीय अभय जी, जितो अपेक्स वाइस प्रेसिडेंट, माय डियर संजय जी, इंटरनेशनल कन्वीनर जेपीएफ, और इस वेबिनार में समस्त ऑडियंस, जय जिनेंद्र. इस वेबिनार का विषय डीम डेयर डिलीवर जितना लुभावना है, उतना ही दमदार प्रस्तुति हमारे श्री अभय जी ने जो दी है उसके लिए अभिनंदन. मित्रों, सपने देखने का जोश, उन्हें साकार करने का जज्बा और उन्हें दूसरों लोगों तक पहुंचाने का जुनून, पैशन, वही कर सकते हैं जिनके पास सोच हो, विजन हो, साहस और संकल्प हो. हम भारतीय, खासकर जीतो से जुड़े हर एक व्यक्ति में खूबी है. वह विपरीत परिस्थितियों में भी सपने देखता है और उन्हें साकार करता है. वर्ल्ड वाइड महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी हमने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि हम भारत किसी से कम नहीं है. इस आपातकाल में जीतो ने प्रधानमंत्री राहत कोष, समाज में एवं आम जनता को जो योगदान दिया, उसके लिए भी आप सबको बधाई. ऐसे ही किसी आयोजन में फिर मिलने की उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबको धन्यवाद. और संजय जी, आपने जो एकदम जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है, एक्सीलेंट. हाँ, वो माहिर है, पूरे इंटरनेशनल सेमिनार्स में भाग लेते हैं. तो यस, वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. रवि भाई, थैंक यू भैया. रवि भाई, क्लोजिंग कमेंट आपको देनी है. इट्स रियली वंडरफुल सेशन है. सबका नीचे कमेंट आ रहा है एक और सेशन करने के लिए. एक बार आपको टाइम लेना पड़ेगा. हम लोग वापस से फिर आपको एक बार अप्रोच करेंगे अभय भैया. और थैंक यू संजय जी, यू रियली मोटिवेटेड वेरी वेल. थैंक यू रवि जी. थैंक यू अजय जी. Thank you very much. Thanks Abhay ji for your valuable time and the guidance. Sanjay ji, outstanding
session. You moderated it really well. Thanks. Thanks very Thank much. you. Cheers, bye-bye, and let's have a video and then we'll share. Thanks, wonderful job, everybody. Thank you for participating. Cheers, bye-bye. जी, Jai thank you Jinendra. so much. बहुत बहुत धन्यवाद.